Hello everyone, welcome back to my channel Gyan Jyoti Education Point. Please like, subscribe and share my YouTube video. Now, in the today's class, we will do the practical questions of holding company, accounting of holding company. Now, let us understand with this question accounting treatment of holding companies. From the following information, prepare the consolidated balance sheet of H Limited and its subsidiary S Limited. Holding company is H Limited and its subsidiary company is S Limited. You can see there is the liability side, share capital in shares of ₹10 each. ₹10 each का शेयर है. होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल है 10 लाख एंड सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल है 5 लाख. अदर लाइबिलिटीज 2 lakh and 40,000. होल्डिंग कंपनी की टोटल लाइबिलिटीज इज 12 lakh एंड एस लिमिटेड की टोटल लाइबिलिटीज 5,40,000. And on the asset side, you can see the property, plant and equipment of H Limited is 8 lakh and property, plant and equipment of S Limited is 5,40,000. इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड. ये इन्वेस्टमेंट किसने करी हुई है? एच लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट करी हुई है एस लिमिटेड के शेयर्स में. कितने शेयर्स है? 40,000 शेयर्स हैं, 10 का ईच. 4 लाख शेयर्स परचेज करे हुए हैं. यू कैन सी कितने शेयर्स परचेज करे हुए हैं? 4 लाख शेयर्स परचेज करे हुए हैं. और यहाँ पे आप देख सकते हो एस लिमिटेड की टोटल शेयर कैपिटल है 5 लाख. On the liability side, share capital of S Limited is 5 lakh. 5 lakh की share capital है. It means number of shares are 50,000. 5 lakh divided by 10, number of shares are 50,000 के shares हैं. और 50,000 के शेयर्स में से 40,000 के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किसने कर दी है? होल्डिंग कंपनी ने करी है. इट मीन्स 40,000 shares are acquired by the holding company and 10,000 shares, कुछ जिनके पास 10,000 shares हैं वो अग्री नहीं हुए अपनी शेयर्स को सेल करने के लिए होल्डिंग कंपनी को. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल and minority interest. Now let us understand this. How do you calculate it? You can see here 4 lakh के शेयर्स हैं. सॉरी 40,000 किसने शेयर्स परचेज करे हैं? होल्डिंग कंपनी ने परचेज करे हैं. डिवाइडेड बाय 50,000 शेयर्स. डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स कितने हैं सब्सिडी कंपनी के? 50,000. 40,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 80%. ये होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी है सब्सिडी कंपनी में. इट मीन्स 80% 80% इक्विटी शेयर्स इज ओन्ड बाय द होल्डिंग कंपनी. ठीक है. एंड द रिमेनिंग इज 20%. Remaining is 20%. It means that is minority interest. 20% is the minority interest who don't agree to sell their shares to the holding company. Now in this unit we will first of all we will understand the meaning of holding company and the minority interest. Now cost of control. First of all we will learn the two things. How do you calculate the cost of control, or you can say the goodwill, and the second term is minority interest. In the last session we have done some formulas for regarding the calculation of cost of control and the minority interest. Now first of all cost of control, हम सबसे on the top we will write the cost of investment कि होल्डिंग कंपनी की कॉस्ट कितनी है इन्वेस्टमेंट की. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड. एस लिमिटेड में कितनी इन्वेस्टमेंट करी है? यू कैन सी ऑन द एसेट साइड. एसेट साइड पे एच लिमिटेड कितना है? 4 लाख है. ऑन द एसेट साइड ऑफ द एच लिमिटेड इज 4 लाख माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल. नॉमिनल वैल्यू
40,000 के शेयर्स परचेज करी हैं और फेस वैल्यू कितना है 10 रुपीज़. 40,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज़, दिस इज 4 lakh. It means there is no cost of control, there is no cost of control or no goodwill. Amount is 0. Now we will calculate the minority interest. You can see here no reserve, no surplus, no losses, तो यहाँ पे उनकी एडजस्टमेंट नहीं होगी. फिर प्रोपोर्शनेट शेयर इन द शेयर कैपिटल, प्रोपोर्शनेट शेयर इन द शेयर कैपिटल. माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर कैपिटल में कितना शेयर है? देखो टोटल शेयर कैपिटल इज 5 लाख, उसका 20%, क्योंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर कितना है 20% है. 80% होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी हुई है सब्सिडी कंपनी ने. इट मीन्स 20% किसका शेयर है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर है. तो 5 लाख का 20% इज 1 लाख. ठीक है, ये आपका क्या आ गया? माइनॉरिटी इंटरेस्ट. देयर इज नो रिजर्व, नो सरप्लस, तो उनकी एडजस्टमेंट नहीं होगी. माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज 1 लाख. कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इज 0, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज 1 लाख. ठीक है, दैट इज क्लियर टू यू. नाउ we will come back to the balance sheet. You have to prepare the consolidated balance sheet. Now the consolidated balance sheet, shareholder fund, this is of H Limited. Consolidated balance sheet of holding company and its subsidiary company. Shareholder fund, liabilities साइड पे यू हैव टू राइट ऑन द टॉप शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड में आपकी शेयर कैपिटल, ठीक है, ओनली शेयर कैपिटल ऑफ एच लिमिटेड. हम यहाँ पर आपने एग्जाम्पशंस पढ़ी थी, हम इन्वेस्टमेंट और शेयर कैपिटल को कैंसिल कर देते हैं, तो सिर्फ हमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस को लाइन बाय लाइन बेसिस पे ऐड नहीं करना होता. ठीक है, होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है? 10 लाख रुपीज़ की. ठीक है, दैट्स इट. नाउ ऑन द सेकेंड टर्म वी हैव टू राइट माइनॉरिटी इंटरेस्ट. माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया है अभी, दैट इज 1 लाख रुपीज़. नाउ अदर लाइबिलिटीज, अब इसको आप लाइन बाय लाइन बेसिस पे ऐड करेंगे. लाइन बाय लाइन बेसिस इट मीन्स होल्डिंग कंपनी प्लस सब्सिडरी कंपनी. तो 2 लाख प्लस 40,000, इट इज़ 2,40,000. नाउ टोटल इक्विटीज एंड लाइबिलिटी, शेयर कैपिटल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्लस अदर लाइबिलिटी, दैट इज 13,40,000. ना एसेट साइड पे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, इसको भी हम लाइन बाय लाइन बेसिस पे ऐड करेंगे. इट मीन्स होल्डिंग कंपनी का 8 लाख एंड सब्सिडरी कंपनी का 5,40,000, इसको ऐड ऑन करेंगे, दिस इज 13,40,000. और यू कैन से यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे बिकॉज इन्वेस्टमेंट एंड शेयर कैपिटल कैंसिल हो चुके हैं. दिस इज अवर एग्जाम्पशंस. तो ये आपकी क्या हो गई? इलिस्ट्रेशन नंबर 2. नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन इन दिस क्वेश्चन वी विल कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट. नाउ from the following balance sheet of H Limited and its subsidiary company S Limited as on 31st March 2020, prepare a consolidated balance sheet. We have to prepare a consolidated balance sheet. Shareholders fund, share capital 100 each, share is 100 each, 10 lakh and 5 lakh. Reserve and surplus, reserves 20,000 of subsidiary company, surplus holding company 1 lakh, subsidiary company 50,000. Now current liabilities, trade creditors 2 lakh of H Limited and 50,000 of S Limited. Non-current assets, property plant and equipment 7 lakh of H Limited and 6,20,000 of S Limited. Non-current investment, ये एवरी टाइम आपको इन्वेस्टमेंट एंड शेयर कैपिटल को ध्यान देना है. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड 5,000 शेयर्स एट अ कॉस्ट. ठीक है, नाउ अब होल्डिंग कंपनी ने
एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है। कितने शेयर्स परचेज करे हैं? 5000 शेयर्स परचेज करें, 5000 शेयर्स परचेज करे हैं। कितने में परचेज किया है? 6 लाख रुपीज़ में। आप देख सकते हो सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स कितने हैं। शेयर कैपिटल है 5 लाख रुपीज़, शेयर कैपिटल है 5 लाख रुपीज़ और एक शेयर्स की वैल्यू है 100। तो नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 5000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 5000। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इज 5000 और यू कैन से 5000 के 5000 शेयर्स जो हैं परचेज कर लिए हैं होल्डिंग कंपनी ने। दिस इज़ अ केस ऑफ होली ऑन सब्सिडरी, क्योंकि सारे के सारे शेयर्स किसने परचेज कर लिए हैं? होल्डिंग कंपनी ने परचेज कर लिए हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देख सकते हो आप, रिजर्व्स भी है, सरप्लस भी है, ठीक है। और कंपनी कब परचेज हुई है, आप देखो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है आपको, एच लिमिटेड परचेज शेयर्स इन एस लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट 31 मार्च 2020। तो जिस डेट पे बैलेंस शीट है सेम डेट पे परचेज करा है, तो इट मीन्स रिजर्व एंड सरप्लस। ये रिजर्व और सरप्लस आपको दो जो दिए हुए हैं ये आपके प्री इक्विजिशन है। सेम डेट पे आपने परचेज करिए, जिस डेट पे बैलेंस शीट है उसी डेट पे कंपनी ने एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के शेयर्स को परचेज किया है। इट मीन्स ये जो रिजर्व एंड सरप्लस आपको दिए हुए हैं ये प्री इक्विजिशन। इट मीन्स कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले के ये रिजर्व हैं और पहले के ये सरप्लस हैं। नाउ यू कैन सी द सॉल्यूशन। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए हमने फॉर्मूला करा है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे कैलकुलेट होगा? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है आपकी 6 लाख। 5000 शेयर्स कितने में परचेज करे हुए हैं? 6 लाख रुपीज़ में परचेज किया, माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल 5000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज द फेस वैल्यू। तो now your nominal value of the share capital is 5 lakh. Now after that you have to subtract proportionate share of pre-acquisition reserve. तो pre-acquisition reserve यहाँ पे तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया है कि ये किसका केस है? होली ऑन सब्सिडरी का केस है, बिकॉज 5000 के 5000 शेयर्स होल्डिंग कंपनी ने परचेज कर लिए। तो pre-acquisition reserve पूरा का पूरा हम आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में से माइनस हो जाएगा। 20,000 माइनस प्री इक्विजिशन सरप्लस 50,000। यू कैन सी ये रिजर्व और सरप्लस किसके हैं? सब्सिडी कंपनी के हैं, रिजर्व भी एंड सरप्लस भी। नाउ आफ्टर डिडक्टिंग दिस यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल। पॉजिटिव आंसर आता है, इट मीन्स दिस इज योर गुडविल। Positive answer means your cost of control and goodwill. Minority interest is nil because this is a case of wholly owned subsidiary company. Now look at the balance sheet. ये आपकी जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है, गुडविल को हम एसेट साइड पे शो करेंगे। जो आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल आया है, दिस इज योर दिस विल बी शो ऑन द बैलेंस शीट में एसेट साइड इंटेंजिबल एसेट्स। नाउ कम बैक टू द बैलेंस शीट। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, शेयर कैपिटल ओनली किसकी लिखनी है हमें? होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल लिखनी है, दैट इज 10 लाख। फिर देन रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी मैंने आपको बोला था, रिजर्व एंड सरप्लस को हम लाइन बाय लाइन बेसिस पे ऐड नहीं करते हैं। होल्डिंग कंपनी के रिजर्व्स नहीं है, निल। सरप्लस कितना है? 1 लाख, तो रिजर्व एंड सरप्लस विल बी 1 लाख। देन माइनॉरिटी इंटरेस्ट निल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज निल। करंट लाइबिलिटी दैट इज ट्रेड पेएबल, इसको हम लाइन बाय लाइन बेसिस पे ऐड करेंगे। इट मीन्स होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का ऐड ऑन कर लेंगे। 2 लाख प्लस 50,000, 2,50,000,
Now you can calculate total equities and liabilities. Total equities and liabilities 13,50,000. मौसी क्लास ले रही है. Non-current assets, property, plant and equipment, tangible assets will be, आप इनको ऐड कर लोगे, 7 लाख प्लस 6,20,000, 13,20,000. Intangible asset, this is your goodwill, cost of control, that is 30,000. Total assets is 13,50,000. Now that's it for today. Now next question we will do in the next session. Please like, subscribe and share my videos, and thank you for watching my videos.